So who can quickly define what is essay? Quickly, just write the comment. What is an essay? How can you define essay? That is the first step that you start your preparation. Always remind yourself that what is an essay. This will give you tremendous boost, and then you will not be misguided and you will not mislead yourself, because you will be writing different things and you have to divide your mind in so many directions. Those who are competitive exams candidates, they have to divide their mind in 12 directions, and all those 12 directions have different methodologies. One of the direction, that is essay, and that's why you must know that what is the definition of your subject. That is the beginning. So anybody can tell me, define quickly what is an essay, so that we understand that what we are going to do today in this class. That will be the beginning. So define, right, type quickly, what is an essay? And that will be your first introduction to me, that you are available here in classroom on the topic of essay writing. So we have our class today on practice, theory and practice, praxis of essay writing. If I'm audible and visible, so please like this video broadcast and share it in safe 3 WhatsApp groups and safe 2 Facebook group. And then we continue our class today. Essay, Muhammad Riza Butt says that essay is explanation of any specific academic topic. So if you have the same topic like resolution of Pakistan, so if you explain it academically in Pakistan affairs, whether it will be essay or not, Riza. So please tell me, if you write academically on the resolution of Pakistan in Pakistan affairs, whether it will be essay or not, because it is specific academic topic. So preparing for CSS is really a dilemma, because you have to divide your mind into 12 parts. And consciousness makes you expert. Consciousness. You are conscious, you know your time space, where you are, what is the subject, what we are discussing. So this makes you successful. Consciousness. Thank you, Imran. As usual, you are so cooperative. Now, what is essay? Zartasha Khan. Essay is a general piece of writing. Nothing. This is, so difficult. When teacher and student, they are on the same page. Very difficult to bring you people on the same page. After my 120 lectures of essay, there are people sitting here. They might have heard my definition 100 times. Structured, critical, analytical writing, Sikandar. It is what you already have in your mind. You don't change consciously. आप जो है चेंज नहीं होते, जो है वही है, बस इसको चेंज करो. What definition I gave you so many times? You are coming with the same stereotyped kind of definition. When you don't know what is essay, how can you write an essay? So Amir Khan says that essay is a literary composition of data in systematic, technical, very, learning is so difficult. Technical and then say non-technical. Zartasha Khan, you have heard my definition of essay. Why you are taking from Wikipedia? These are Hasnain Raza, the requirements of an essay. We always start from the zero, the same thing. Start from the scratch. How we will proceed? These are the requirements: figures of speech, proverbs, idiom, phrasal verbs. What next?
What is the definition of an essay? essay है क्या चीज? Now Zartasha Khan writes from Wikipedia, definition is vague, overlapping with those of a letter, paper, article, pamphlet, short story. Shahram Hanif. Essay is a short literary academic composition of analytical, narrative, expository, argumentative, or another type in which the writer presents his or her point of view in non-systematic. Excellent. This is called definition. 100 marks. 10 out of 10. And this definition I have given you because this definition is based on Webster Dictionary definition. Encyclopedia, Wikipedia is Wikipedia, that is encyclopedia, that discuss things from different directions. But when you go for definitions, go to Webster Dictionary. Webster Dictionary is, Hassan Jamil has also written the same thing. Short literary composition. Hamid Kakad, after 2 years at least, he learned what is definition of essay. Good progress. तो साल 2 साल में अगर आप ऐसे का डेफिनेशन भी सीख ले, ये भी बड़ी बात है. लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि somebody asks you 2 + 2 and you quickly say 4. It is called learning. जब आपसे कोई पूछे 2 + 2 तो आप फौरन कहते हैं 4. इसका मतलब है कि यू हैव लर्नड. वरना जो होते हैं ये लर्निंग नहीं है. That is fuzzy logic. You are fuzzy, you are confused, you are not clear. So essay is these 3-4 gentlemen defined: Hamid Kakar, Hassan Jamil, and Shahram Hanif. That is essay. Okay, so when you are writing an essay, remember, knock at your door, make yourself conscious that it is essay. Literary means literature. Literary means idioms, figures of speech, proverbs, quotations. This is called literary. लिटरेरी का क्या मतलब है कि आपने इसमें idioms डालने हैं, figures of speech डालने हैं, metaphors डालने हैं, similes डालने हैं, examples डालने हैं, proverbs डालने हैं, quotations डालने हैं. बॉडी पैराग्राफ्स में, इंट्रोडक्शन में इतना नहीं. इंट्रोडक्शन में कोटेशन मत डाले, क्योंकि वो छोटा सा पैराग्राफ होता है, उसमें आप कोटेशन भी डालो तो आपके पास टाइम ही नहीं है इंट्रोड्यूस करने का. तो कोटेशंस को बॉडी पैराग्राफ में डाले. प्रोवर्ब्स, इडियम्स, ये सारी जो है इसको कहते हैं लिटरेरी. कल हमने पूरा घंटा इस पर तकरीर किया था सेफ 5 में कि लिटरेरी इज नॉट लिटरल. एक लिटरल चीज है, लिटरल लफ्जी. तो इसे वाहिद आपका 12 पेपर में से एक पेपर है जिसमें आप नॉन लिटरल चीजें लिख सकते हैं. नॉन लिटरल. बीट अबाउट द बुश, तो ये एक ईडियम है भाई, झाड़ी के आगे पीछे मारना, झाड़ी मारना. अब झाड़ी मारना जो है वो क्या है? लिटररी है. नॉन लिटरल है, गैर लफ्जी है, इडियमेटिक है, फिगरेटिव है, रियल मीनिंग नहीं है. तो इसे वाहिद आपका पेपर है जिसमें आप गैर लफ्जी चीजें डाल सकते हैं. अब गैर लफ्जी चीजें क्या है? गैर लफ्जी चीजें यही है, इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, प्रोवर्ब्स है, कोटेशंस है, फिगर्स ऑफ स्पीच है. एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में ये तमाम चीजें मौजूद है. सेफ प्रेसी कंपोजिशन ग्रुप में सेफ 5 में ये तमाम चीजें मौजूद है. उधर से उठाओ, अपने ऐसे में डालो, तो आपका ऐसे लिटरेरी बन जाएगा. अगर इसमें कोई ईडियम नहीं है, प्रोवर्ब नहीं है, फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का पेपर है, ऐसे नहीं है. बाकी सारी चीजें जो है वो मिलती जुलती है बाकी पेपर्स के साथ. एक लिटरेरी जो है ये टोटली डिफरेंट है. ऐसे में वाहिद जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, प्लीज राइट इट,
The distinguishing feature of essay from other papers is literary. Its nature to be literary. जो लिटरेरी है ये वाहिद चीज है बस, बाकी सारे पेपर में अब इकट्ठे एक जैसी तैयारी करें। आप सिर्फ ऐसे के लिए जो है ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, वो आपको प्रेसी कंपोजिशन में भी काम आएगा। कोई ईडियम पे क्वेश्चन आता है, आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है फ्रेजल वर्ब्स ईडियम्स पे। तो जब आप ईडियम्स तैयार करते हैं तो उन ईडियम्स को आप ऐसे में भी डालें, तो आपका आम राइटिंग जो है वो ऐसे बन जाता है। सिंपल सी बात है। लिटरेरी राइटिंग मीन्स इट मस्ट बी इफेक्टिव। अदर राइटिंग में नॉट बी इफेक्टिव, इट मस्ट बी करेक्ट। जो आम राइटिंग है उसको करेक्ट होना जरूरी है, करेक्ट। उसमें आप लॉजिक की गलती, ग्रामर की गलती नहीं कर सकते। ऊट पटांग किस्म की चीज आप उसमें नहीं लिख सकते। आज मुझे किसी ने कहा जी सोल जो है रूह, ये मैकडोनल्ड ने कहा है कि ये जो है ये 21 ग्राम का है। बड़ा वो इस पर श्योर था कि जी 21 ग्राम का है। मैंने कहा नहीं है, ये गलत एक्सपेरिमेंट हुआ है। सोल का जो है, रूह का कोई वजन नहीं है। तो अगर आप इस तरह की चीज लिखते हैं किसी पेपर में कि जी सोल, द वेट ऑफ सोल इज 21 ग्राम्स, कि रूह का जो वजन है वो कितना है, 21 ग्राम है। आप समझते होंगे कि यार ये तो बड़ा साइंटिफिक चीज है, डेटा है, डालो। लेकिन वो साइंटिफिकली गलत है, दैट इज साइंटिफिकली इनकरेक्ट। तो आप साइंस के खिलाफ बात नहीं कर सकते, लॉजिक के खिलाफ बात नहीं कर सकते, ग्रामर के खिलाफ बात नहीं कर सकते। लॉजिक, ग्रामर और साइंस। एक उसमें और चीज है, दैट इज कॉल्ड एप्रोपिएसी। एप्रोपिएसी का मतलब है कि चीज मुनासिब भी होनी चाहिए, मुनासिब। आप सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे आप ऐसे लिखते हैं तो आपने ये नहीं करना कि भाई बमबारी करनी है फौज पे कि जी फौज ये है, ये इस्लामाबाद फतह करती है, इसने 1 इंच जमीन फतह नहीं की है, फौज जो है हमारा दुश्मन है, फौज ही पाकिस्तान का दुश्मन है, इनको सिर्फ इस्लामाबाद नजर आता है, ये हमारा सारा बजट खा जाती है, और फौज ये है, फौज वो है। तो ये एप्रोप्रिएसी नहीं है। एकेडमिक लोग इस तरह की बातें नहीं करते, जो आम स्ट्रीट में, गली में लोग जो है वो बातें करते हैं। तो हो सकता है बेशक आपकी बात ठीक भी हो, फैक्ट हो, लेकिन एप्रोप्रिएट तरीके से उसको डिप्लोमेटिक तरीके से पहुंचा दो। हाँ मखा जो है ना वो इतनी बमबारी मत करो। सेंसेशनलिज्म, येलो जर्नलिज्म जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। उसको क्या कहते हैं? सेंसेशनलिज्म, येलो जर्नलिज्म, सनसनखेज इंकशाफात, जी ये हो गया तो वो हो गया, तो बाद में कूदा पहाड़ निकला चूहा, कोई इसमें कुछ नहीं निकला है, भी बस सारी जो है ना बातें थी। तो इस तरह की चीज जो है आप इसे में नहीं लिख सकते। कंपोजिशन का मतलब है, एकेडमिक का मतलब क्या है? डेटा। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कोहेरेंस एंड कोहिजन, कनेक्शन, कंपोज। दैट पर्सन इज कंपोज्ड। अब नईम खान जो है ये क्या है? कंपोज किस्म का पर्सन है। कंपोज का मतलब ये है कि ये इधर उधर से जो है ना वो कोई उसको हटा नहीं सकता। मामूली से बात उसको कोई करे तो उसके मुंह में वो डालते कि तुम कौन हो। कंपोज बंदा ऐसा होता है, कंपोज्ड, ठीक है। वो मामूली से बात उसको हिला नहीं सकता। कोई उसको गाली दे दे, कोई उसके खिलाफ बात करे, कोई उसको ये करे वो करे, कोई उसको कुत्ता कहे, तो कहता है कि कुत्ता जो है ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला है, ठीक है। कुत्ता का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, मुझे पता है कि मैं कुत्ता हूं कि मैं कुत्ता नहीं हूं, ठीक है। बंदे को एहसास होता है। अब ये नहीं कि बंदे ने मेले में जो है वो बकरी खरीदी तो रास्ते में ठग खड़े थे, ठग धोखेबाज। तो एक ने कहा जी ये तुमने कुत्ता खरीदा है, तो दूसरे ने कहा तुमने कुत्ता खरीदा है, तीसरे ने कहा तुमने कुत्ता खरीदा है। तो बंदे ने बकरी को छोड़ दिया कि यार ये तो वाकई कुत्ता है। वो बात लोगों की बातों में आ गया। होते हैं कमजोर लोग होते हैं, जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो कंपोज होते हैं, कंपोज, सॉलिड,
सॉलिड लैंग्वेज, उनकी कम्युनिकेशन इज सॉलिड, कंपोजिशन मीन सॉलिड, कोहेरेंट, कोहेसिव, फ्लो, कनेक्शन। उसके बाद में कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन क्या होता है? करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन के पीछे दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। रो, बिल्कुल ऐसे लेजर बीम, ठीक है, बिल्कुल लेजर बीम की तरह, शुआ की तरह जो है वो उसकी बातें चलती है, उसकी कंपोजिशन चलता है, जंप्स नहीं होते उसमें, और वो कंसिस्टेंट भी होता है। कंसिस्टेंट ये कि वो हर रोज थोड़ा करता है लेकिन डेली करता है, ये नहीं कि एक दिन जी कुर्बान, जी मेरा सब आप पे कुर्बान, नईम खान, मैं ये वो, मुझे पता है कि 2 दिन के बाद गायब होगा। तो ये जो है इसको कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंपोज्ड, सॉलिड, कोहेरेंट, कोहेसिव। तो ऐसे जो होता है वो भी इस तरह सॉलिड किस्म की चीज होती है, सॉलिड, कंसिस्टेंट, लॉजिकल। वो डावाडोल नहीं होता, ठीक है, कि लोगों की बातों में नहीं आता, जो है वही है। एनालिटिकल का मतलब है गोइंग इनटू डिटेल्स। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बीमारी है, पीपल डू नॉट गो इनटू डिटेल्स, नहीं जाते लोग, बिकॉज वी आर टोल्ड साइलेंस इज गोल्ड, खामोशी बेहतर है। बड़ा जी खामोश बंदा है जी, किसी के काम में काम नहीं रखता, अल्लाह मियाँ की गाय है, वो जी हाँ जी रिश्ता मंजूर है, बड़ा जी कुछ नहीं कहता। यार कुछ नहीं कहता तो डब्बा है, खाली बोतल है, क्या करना है इस कमरे? कुछ बोले, पता चले कि अंदर क्या है। तो एनालिटिकल मीन्स गोइंग इनटू डिटेल्स, गोइंग इनटू पार्ट्स। एक एक चीज जो है ना, किसी के घर में जाना, तमाम कमरे गिनना, कितने कमरे हैं, कितनी कुर्सियां हैं, कितने उसमें टेबल है, कितने प्लांट्स है, क्या है उसके अंदर, इसको कहते हैं एनालिटिकल। अब मैं कहता हूं नहीं कहता, लेकिन जब मैं जाता हूं किसी जगह, पूरा स्कैन करता हूं, स्किम, क्या है एनालिटिकल। ये नहीं कि मुझे कोई बिठाए कुर्सी पे और कुर्सी पीछे से मुझसे खींचे और मैं जमीन पे धड़ाम से गिर जाऊं। होते हैं बेवकूफ स्टूपिड किस्म के लोग, ठीक है। तो एनालिटिकल जो है वो आप डिटेल में जाएंगे कि जी ये बंदा कुर्सी को तो नहीं पकड़ रहा, मैं उसको कुर्सी को देख रहा हूं, हाथ को देख रहा हूं। पाकिस्तान में लोग डिटेल में नहीं जाते, बस सुपरफिशियल, बस सती बात, हाँ जी हो गया जी, बात ठीक है जी, बेफिक्र नहीं। ये गलत है। एनालिटिकल नैरेटिव जो है सीएसएस में नहीं होता ज्यादा, समटाइम यू कैन राइट नरेशन। एक्सपोजिटरी का मतलब है एक्सप्लेन। आर्गुमेंटेटिव ऑलरेडी नो, गिव आर्गुमेंट्स। योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नॉन सिस्टमेटिक का मतलब यह है कि ये किसी खास तरतीब में नहीं है, आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकता है। नॉन टेक्निकल का मतलब यह है कि इसमें जरूरी नहीं कि आप उस टॉपिक की साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी सारे डालें, वो बिल्कुल फिलॉसफी लगे या साइंस लगे या कोई और चीज लगे, केमिस्ट्री लगे, फिजिक्स लगे। लिमिटेड का मतलब यह है कि ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लिमिटेड, महदूद, इतने डिटेल में आप नहीं जाते। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट एसे राइटिंग, सो प्लीज लेट मी नो। क्या आपके जहन में ऐसे के बारे में कोई क्वेश्चन है? ऐसे स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन। अब जो लोग डेली पैराग्राफ लिखते हैं, मुझे पता है कि ये लोग ऐसे लिख सकेंगे, आई एम श्योर। जो मेरे 7 PM से पहले अपने रिटन असाइनमेंट प्रोफेशनल लोगों की तरह सबमिट करते हैं और हर बंदे को मैं रिस्पांस भी देता हूं, इन लोगों पे मेरा यकीन है। बाकी सारी जो है एम ही बस मुंह उठा के आए हैं, मुझे कोई सीरियस लोग नजर नहीं आ रहे इसमें। जो 24 घंटों में एक पैराग्राफ नहीं लिख सकता, वो सीएसपी बनने का ख्वाब छोड़ दे, कोई जाके कोई और काम करे। Sir, can I add supportive arguments as headings? No. No headings in essay. No headings, no titles in essay. The unit of composition is paragraph. The unit of essay is
पैराग्राफ। यूनिट का मतलब है सबसे छोटा, तो ऐसे में सबसे छोटी चीज क्या है? पैराग्राफ है। पैराग्राफ से छोटी चीज नहीं है, तो आप इसमें कोई हेडिंग्स कोई चीज नहीं डाल सकते, नो नट एट ऑल। बाकी पेपर में कोशिश करें पैराग्राफ लिखे, अगर नहीं हो सकता तो उधर फिर डाले हेडिंग्स वगैरह या थोड़ा बहुत बुलेट पॉइंट्स आखिर में। मेरे पास यही होता था जब मैं ऐसे मैं बहुत लिखता हूँ। छठी क्लास में मैं क्लास में खड़ा हो गया एग्जामिनेशन हॉल में, सर अल्लामा इकबाल पे ऐसे आया था, एक पेज का अल्लामा इकबाल पे ऐसे लिखे। मैंने क्या कहा, सर मैंने 10 पेजेस लिखता हूँ। वो बड़ा हैरान हो गया कि लोग एक पेज नहीं लिख सकते, तुम 10 पेजेस कैसे लिखोगे? मैंने कहा मैंने लिखना है। उसने स्पेशल मेरे लिए कागज़ मंगा लिए। तो क्योंकि राइटिंग बनने के बाद बहुत नॉलेज होता है, तो मेरे साथ हमेशा CSS और PMS में हुआ है कि आखिरी क्वेश्चन जो होता था 4 या 5 में से, वो मैं हेडिंग डालता था, बस टाइम ही नहीं था पैराग्राफ लिखने का। सर इन पाकिस्तान अफेयर्स वी आर नॉट अलाउड टू गिव आर्ग्यूमेंट्स, राइट? Who told you you cannot give arguments? In Pakistan affairs, you can give arguments because you have to justify democracy, the rule of law, constitution, development. You have to give arguments for it. Poverty alleviation, socio-economic problems, current account deficit. आज मैंने आर्टिकल जो सेफ वन के आर्टिकल्स है, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि 3। सेफ 1 आर्टिकल्स, डेली 1 पैराग्राफ राइटिंग, एटलीस्ट 1 लाइव सेशन, ये 3 काम आप करोगे बहुत है। तो आज मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट पे आर्टिकल दिया। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम तो नहीं, मतलब इन महीनों में दोबारा नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव में जा रहा था। तो आपने आर्गुमेंट्स देने हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट को आप कैसे पॉजिटिव करें, नेगेटिव से सरप्लस में कैसे ले जाए। सो यू हैव टू गिव आर्गुमेंट्स। Yes, you cannot give arguments against the state. ये आर्गुमेंट आप नहीं दे सकते जी पाकिस्तान बना क्यों, यूनाइटेड इंडिया बहुत बेहतर था, बस आराम से हम भी मुंबई में जो है कतरीना कैफ के साथ बैठे होते, ये क्या तुमने लोगों ने पाकिस्तान बनाया। तो आप स्टेट को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते, स्टेट को। दूसरी बात जो है, जो गवर्नमेंट है उसमें आप जो है, जो करंट गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ ए सच नहीं हो सकते, इमरान खान के खिलाफ नहीं हो सकते, एक पर्सनैलिटी के खिलाफ नहीं हो सकते। आप ओवरऑल उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान अफेयर्स में ये प्रूव नहीं कर सकते कि जी इमरान खान बहुत बुरा है और नवाज शरीफ बहुत अच्छा है। इस तरह के आर्गुमेंट्स आप नहीं दे सकते। यस, तो एक स्टेट हो गया, एक पर्सनैलिटीज हो गए। मतलब आप पर्सनैलिटी में साइड नहीं ले सकते कि जी भट्टू बड़ा बंदा ठीक बंदा था। ज़िया उल हक पे लोग करते हैं क्योंकि उस पर सब करते हैं, तो वो एक नॉर्म बन गया है, अब एक रूटीन बन गया है। ज़िया उल हक पे सारे लोग जो है वो क्रिटिसिज्म करते हैं पर्सनली, उसकी पर्सनैलिटी पे। आप इंस्टीट्यूशन पे कर सकते हैं, पर्सन पे नहीं कर सकते। और क्या हो गया, इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, आप लिबरलिज्म या सेकुलरिज्म या एथीइज्म वगैरह वो चीज़ें आर्गूमेंट नहीं दे सकते कि पाकिस्तान सेकुलर बन जाए या एथीइस्ट बन जाए या गैर मजहबी बातें जो है ना, बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी, जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिलीजन के खिलाफ है, क्योंकि रिलीजन में डेमोक्रेसी नहीं है। रिलीजन में तो खिलाफत है, रिलीजन में जो है वो और चीज़ें है। जब आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेकुलरिज्म आ जाता है और रिलीजन जो है वो बैक पे चला जाता है। लेकिन डायरेक्ट आपका टारगेट नहीं कर सकती कि जी रिलीजन ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान से, कोई इस्लाम नहीं होना चाहिए, मुल्ला को सब मुल्ला को जो है ना बाहरी उक़यानूस में धकेलो, एक दिक्का और दे दो, इस तरह की बात ही नहीं कर सकते। आम गपशप में हम लोग करते रहते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं। What is thesis statement? How to write it? Thesis statement, I have delivered like more than 20 lectures in this group on thesis statement. I have given 100 examples of thesis statement. So my one request is that please, you have 12 subjects for CSS candidates and you have 12 safe groups. Each group is like a digital book. Explore it. You will find a lot of things
Don't wait only for the live class. Whenever you have time and energy, go for the exploration of the groups. Time and energy. Energy management is very important. How you can see me so energetic? अगर मैंने जो है इससे पहले कोई 2 लड़ाइयाँ की हो, या मैंने जो है कोई खाना न खा चुका होता, या मुझे कोई हार्मोनल इशू होता, या मुझे ब्लड प्रेशर होता, या मेरा दिल जो है ना धड़कता था, या मुझे शुगर हो, या मुझे कोई और बीमारी हो, तो ये एनर्जी मेरी होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा एनर्जी मैनेजमेंट ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी को कंजर्व करो। खामखा अपने आसाब को और अपनी जो है बॉडी को, माइंड को, हार्ट को, सोल को फजूल चक्करों में मत लगाओ, उसको कंजर्व करो। तो जब वो कंजर्व होता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोडक्टिव चीज़ें के लिए एनर्जी होती है। अब एक बंदा थक जाता है, सास के साथ लड़ाई है, तो ससुर के साथ लड़ाई है, तो बहन के साथ लड़ाई है, तो हमसाये के साथ लड़ाई है, ड्राइवर के साथ लड़ाई है, दुकानदार के साथ लड़ाई है, लोगों के साथ जेलस होता है, कंपैरिजन करता है, अपने आप को कूटता रहता है, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो सारे उसके नर्व जो है उस चीज़ में चले जाते हैं। तो क्लास में ऑटोमेटिकली उसके पास कुछ नहीं होगा। एनर्जी मैनेजमेंट, जब आपके पास एनर्जी होगी तो आप ये तमाम सेफ के ग्रुप्स को एक्सप्लोर कर सकेंगे। सिंपली व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? Thesis statement is, please write it. Thesis statement is topic plus your standpoint, your position. Topic plus your position. Thesis statement is equal to topic plus position. T is equal to TP. इस शॉर्ट फार्मूला याद रखिए। T is equal to TP। तो TP जो है क्या है? टॉपिक एंड पोजीशन। टॉपिक आपको एग्जामिनर देता है, कोई भी टॉपिक, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स प्रमोशन इन पाकिस्तान, ये सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक आपको देगा एग्जामिनर, और उस टॉपिक के बारे में आपका पोजीशन क्या है, आप क्या कहते हो, इसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। डेमोक्रेसी है, सो यू से डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where people are represented properly and their human rights are protected, plus education and development is guaranteed। तो ये आपका थीसिस स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, मैं जब क्लास देता हूं कोई जज्बे में आके मैं जल्दी बात करता हूं, तो उसको आप रिवाइंड बाद में कर सकते हैं, ये क्लास जो है रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब आपने डेमोक्रेसी के बारे में मेरा ये थीसिस स्टेटमेंट दोबारा सुनना है तो उसको रिवाइंड करो। आप वॉक करते हैं या वैसे बस में जाते हैं तो फ्री हैंड लगा के इस लेक्चर को सुना करें। सो दिस इज थीसिस स्टेटमेंट। इन आर्गुमेंटेटिव एसेस थीसिस स्टेटमेंट इज वेरी इजी। आर्गुमेंटेटिव में थीसिस स्टेटमेंट बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपका पोजीशन उसमें बड़ा आसान होता है। कोई आपसे पूछे, हाँ जी ये बताओ कि काला चाय कि गोरा चाय, आपने पोजीशन तो देना है अपना कि काला चाहे या गोरा चाहे। आप कहते हैं जी गोरा चाहे, कोई कहता है काला चाहे। तो ये जो टॉपिक पे आपका पोजीशन है, इसके बारे में जो आपका बयान है, बयानिया है, स्टेटमेंट है, इसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। डेमोक्रेसी ठीक है या डिक्टेटरशिप, ये आर्गुमेंटेटिव है। इसमें से आपने एक लेना है और एक लेके उसी को आपने डिफेंड करना है, दूसरे को आपने डिनाउंस करना है। You have to defend your position and you have to denounce the other option। मतलब अदर ऑप्शन को डिनाउंस करना भी आपका काम है कि भाई डिक्टेटरशिप गलत है, क्यों गलत है? आर्गुमेंट्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, देयर इज ह्यूमन कैपिटल इज नॉट डेवलप्ड, ओनली वन ह्यूमन बीइंग डिसाइड्स फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। तो आप डिक्टेटरशिप के खिलाफ लिख रहे हैं, आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, और डेमोक्रेसी के फेवर में दे रहे हैं बॉडी पैराग्राफ्स में।
थीसिस स्टेटमेंट का पोजीशन क्या है? लास्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डिक्टेटरशिप, हाउ इज डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आपने ये जनरल बातें की, आखिर में आपने एक स्ट्रॉन्ग बयान दे दिया that democracy is the best form of government because here people are represented properly, their constitutional rights are guaranteed, education and development, health are made fundamental rights, and people lead a successful and happy life in democratic governments. तो ये तीसरी स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो आखिरी सेंटेंस है उसको तीसरी स्टेटमेंट कहते हैं। How to connect each paragraph of an essay. Now this is transition, connection, coherence, cohesion. Connection. हमारे लोगों में कनेक्शन नहीं होता क्योंकि उनके ख्यालात में कनेक्शन नहीं होता। बाप कहते हैं जी दुबई जाओ, माँ कहती है जी लंदन जाओ, चचा कहते हैं जी शादी करो, और ऊपर से खाला कहती है कि जी तुम दुकान खोलो। तो बंदा कंफ्यूज होता है कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने लाइफ में यही चीज़ सीखी है कि जब आप क्लियर होते हैं तो आपके बातों में भी कनेक्शन होती है, आपकी लाइफ भी ठीक लाइन पे चलती है। जब आप क्लियर ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, क्या करना है, बंदा कंफ्यूज होता है। तो जब कंफ्यूज होता है तो कनेक्शन भी नहीं होता। तो पैराग्राफ्स में कनेक्शन जो है इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका कोहेरेंस, इस ग्रुप में मैंने इस पे लेक्चर दिए है। कोहेजन, कोहेरेंस जो है साइकोलॉजिकल कनेक्शन, आइडिया, एक आइडिया को आपने एक्सप्लेन करना है। कोहेरेंस ये है कि फिजिकली सेंटेंसेस एंड phrases and paragraphs should be physically connected. Coherence is psychological, cohesion is physical. उसके अलावा आप कनेक्टर यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स यूज करते हैं, फर्दर मोर, हेंस फोर्थ, देयर फोर, कीपिंग द अबव इन वीव। ये जो जॉइनिंग एडवर्ब्स है, कंजंक्शंस है, ये आप सारे यूज करते हैं कनेक्शन के लिए। और सबसे आसान तरीका ये है कनेक्शन के लिए, जो मेरा अपना जाती तजुर्बा है, कि हर 10 मिनट के बाद जो है, हर 10-15 मिनट के बाद 3 घंटों में आपने तीसरी स्टेटमेंट पढ़ना है कि जी मेरा तीसरी स्टेटमेंट क्या है। और तीसरे स्टेटमेंट को आपने कनेक्ट करना है टॉपिक सेंटेंस को। पैराग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसको तीसरी स्टेटमेंट कहते हैं। कंक्लूजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो उसको तीसरी स्टेटमेंट कहते हैं। तो जब टॉपिक सेंटेंस, तीसरी स्टेटमेंट और कंक्लूजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, हर 10 मिनट के बाद, आफ्टर ईच 10-15 मिनट्स, रीड योर तीसरी स्टेटमेंट कि भाई मैंने क्या क्लेम किया है, मेरी पोजीशन क्या है इस टॉपिक के बारे में। लोग भूल जाते हैं। आपने डेमोक्रेसी को ऑप्ट किया है ऊपर तीसरी स्टेटमेंट में, और इधर आपको याद आ गया जी कज़ाफी बड़ा अच्छा बंदा है, और चाइना जो है डिक्टेटरशिप में बड़ा अच्छा जा रहा है, और जो है देखो अमेरिका में डेमोक्रेसी ने क्या क्या प्रॉब्लम्स लाए। बंदा भूल जाता है कि मेरी पोजीशन क्या है, फ्लो में है, टेंशन में है, प्रेशर में है, तो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ लिखने लगता है। एग्जामिनर हंसता है और उसको एक बड़ा क्रॉस देता है। तीसरी स्टेटमेंट में आपने डेमोक्रेसी सेलेक्ट किया है, इधर तुम डिक्टेटरशिप को एक्सटोल कर रहे हो, EXTOL, एक्सटोल, प्रेज, एक्सेसिव प्रेज। तो जब ये सारी बातें आएंगी तो देन योर पैराग्राफ विल बी कनेक्टेड। Either quotations improve the quality. Quotations in the whole, if there are 20 paragraphs, 2-3 quotations, 3-4 quotations. Per 6-7 paragraphs, 1 quotation. Can we start an essay with some problem statement? Problem statement, as Wikipedia Zartasha Khan has given the definition, problem statement is more connected to research paper or your thesis for your research,
where you have to give a problem statement. You cannot start from a question, interrogation, but you can give a strong sentence. Why not? You can define. Problem statement means to define the problem. What is the topic? So problem statement terminology is used more in research papers, not in essay writing, but yes, people use it as well. There is nothing bad in it. Conclusion, how to write conclusion of an essay. Conclusion starts, please write it. Conclusion starts with thesis statement with the rephrased thesis statement. Conclusion starts with the rephrased thesis statement. Introduction ends with thesis statement. ये टेक्निकल डिफरेंस है. इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म होता है थीसिस स्टेटमेंट से. कंक्लूजन जो है शुरू होता है रीफ्रेज्ड थीसिस स्टेटमेंट से. इस वजह से आपकी एसे में फिर कनेक्टिविटी होती है. आपने इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट डाल दिया, कंक्लूजन में आपने दोबारा थीसिस स्टेटमेंट को मेंशन किया, थोड़ा सा रीफ्रेज, अल्फाज थोड़े से चेंज करो, एग्जैक्टली वही अल्फाज ना हो. तो एग्जामिनर को पता चल गया कि यार इस बंदे को पता है कि टॉपिक पे सिस्टमेटिकली लिख रहा है. जो बात उसने इंट्रोड्यूस किया था उसी बात को अभी ये कंक्लूड कर रहा है. भूल नहीं किया. हम भूल जाते हैं. वी आर नॉट कंसिस्टेंट. पाकिस्तान में लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है. फैमिली के प्रॉब्लम्स है, ओवर पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, कॉन्जेस्टेड एरियाज है, पार्क्स नहीं है, फिजिकल मूवमेंट नहीं है, लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, माँ बाप के झगड़े होते हैं, माँ बाप बहनों के झगड़े, क्या कहते हैं उसको, भाई बहनों के झगड़े होते हैं, टीवी पे झगड़ा होता है, एक टीवी होता है पूरे घर में. क्या करे लोग, कहाँ जाए? तो गरीब कोशिश करता है लेकिन नहीं होता तो छोड़ जाता है. बस छोड़ो जी. तो कंसिस्टेंट ये है कि जो आपने काम शुरू किया था इंट्रोडक्शन में उसी को आप कंक्लूड कर रहे हैं स्ट्रांग वर्डिंग में. और कंक्लूजन से पहले आपने एक पैराग्राफ लिखना है रिकमेंडेशंस का, सजेशंस का. एंड कंक्लूजन में यू गिव सम कंक्लूसिव वर्ड्स, rephrase words which rephrase your thesis statement, rephrase your body paragraphs. Conclusion is basically rephrasing. इंट्रोडक्शन है, आपने थीसिस स्टेटमेंट ले लिया, बॉडी पैराग्राफ्स में आपसे आपने मोटी मोटी बातें ले ली, टॉपिक सेंटेंसेस को ले लिया, उनको आपने रिफ्रेश किया और उसके बेस पे आपने कंक्लूजन लिखा. In what type of topics should we give suggestion or suggestions so as to secure marks? Every topic you can give suggestions, every topic. Because suggestions, that is your own personality, that is your own point of view. You can give suggestions for education, poverty alleviation, water scarcity, democracy, constitution, current account deficit, socio-economic problems, political problems, civil military relationships, how to improve. अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हर चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है. कोई परफेक्ट चीज तो है ही नहीं. एक हमारे पास परफेक्ट चीज है, वो न्यूक्लियर बम है बस. बाकी क्या परफेक्ट है? कोई परफेक्ट चीज है ही नहीं. कोई ऐसी चीज है नहीं जिस पे हम प्राउड हो, कोई रियल सेंस में कि नहीं जी मजीद इस पे कोई करने की जरूरत नहीं है. How to bring coherence? Coherence is psychological connection. Cohesion is physical connection. Psychological connection means that when your thesis statement is connected to the topic sentences and topic sentences are connected to the conclusion,
दिस इज कोहेरेंस साइकोलॉजिकली। टॉपिक सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सो दिस इज योर थीसिस स्टेटमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द टॉपिक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन इन पाकिस्तान, education system in Pakistan. This is your topic. You introduce education. What is education? Education is the process which brings proper change in behavior. Education is the process which imparts and receives knowledge, skills, attitude, values. Education is of three types: formal, informal, non-formal. Formal education is conducted in educational institutions. Informal is from the experiences of life, while non-formal is in special circumstances like demonstrations and exhibitions. Education produces human capital. Human resource development is highly essential for the economy of any country. Education system of Pakistan has a lot of problems because there is less budget. Teachers are not properly trained. Research opportunities are less. Higher education is deficient of creativity and critical thinking. ये आपने इंट्रोड्यूस किया, अब तीसरी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान lacks on different fronts, and highly important steps must be taken so that Pakistan has world-class education and Pakistan becomes a proud country in the Committee of Nations, COMITY, Committee of Nations. ये आपने इंट्रोडक्शन दिया, तीसरी स्टेटमेंट दिया, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ खत्म हो गया, अब बॉडी पैराग्राफ शुरू होता है। बॉडी पैराग्राफ में आपने एजुकेशन के एक डायमेंशन को लेना है। पहला डायमेंशन आप लेते हैं एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स। तो आपका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? टॉपिक सेंटेंस ये होगा कि एजुकेशन नीड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नीड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। विदाउट प्रॉपर बजटरी एलोकेशन वी कैन नॉट हैव एन एक्सेलेंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ world-class standards. We have 2% of budget allocation, which is quite less. Once there are more financial resources, more budgetary allocation, there will be more teaching, learning material. Teachers will be satisfied. Students will be sitting in highly sophisticated classrooms which will be not congested, and there will be an exceptional learning environment. तो ये आपका पहला बॉडी पैराग्राफ हो गया। इसमें आपने बजटरी एलोकेशन जो है वो डाल दिया टॉपिक सेंटेंस में। ये पैराग्राफ क्लोज हो गया। इस पैराग्राफ में आपने एजुकेशन और इकोनॉमी को, फाइनेंस को इकट्ठा किया। नेक्स्ट पैराग्राफ है एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। तो आपने देखिए, दिस इज अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट दैट एजुकेशन इज नाउ अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 25A. Being fundamental right, it must be the priority of our leadership. As it is constitutionally guaranteed, every child must get primary and secondary education. तो ये पॉलिटिक्स और एजुकेशन हो गया। एजुकेशन एंड सोसाइटी, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो सोशल एंड सोसाइटी एंड एजुकेशन पे आ जाता है। एजुकेशन एंड कल्चर, एजुकेशन एंड टीचर्स, एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एजुकेशन, रिसर्च एंड एजुकेशन, फिर एक पैराग्राफ प्राइमरी एजुकेशन पे, एक पैराग्राफ सेकेंडरी एजुकेशन पे, एक पैराग्राफ हायर एजुकेशन पे।
एक या दो पैराग्राफ कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम विद द अदर कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम्स। तो एक एक पैराग्राफ में आपने एक एक आइडिया को डिस्कस किया, तो ये आपका कोहेरेंस आ गया। जब आपने कंक्लूजन लिखना है तो उस थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा आपने रिफ्रेश करके लिखना है और कंक्लूसिव 5-6 रिमार्क्स देके आपका एसे कंप्लीट हो गया। As essay is non-systematic and non-technical, should I not write scientific terminology and scientific details? No, holistic approach. Problem is that education essay is literary plus academic. खास तौर पर CSS का जो essay है या PMS का, वो लिटरेरी भी है और एकेडेमिक भी है। एकेडेमिक का मतलब है डेटा, टर्मिनोलॉजीज, साइंस, फिलॉसफी, और लिटरेरी का मतलब है ईडियम्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस। तो जब ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती है, सो इट इज नॉन सिस्टमेटिक, नॉन टेक्निकल एंड एट द सेम टाइम एकेडेमिक बिकॉज ऑफ हैविंग साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज। मैंने आपको 50 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। जब भी आप फारिग है तो सेफ की ग्रुप्स को एक्सप्लोर किया करें। फोटोसिंथेसिस पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। फोटोसिंथेसिस इज अ हाईली साइंटिफिक टॉपिक। फर्ज करें फोटोसिंथेसिस पे आपको ऐसे आ गया, फोटोसिंथेसिस पे ऐसे आ गया, तो आपने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस है तो साइंटिफिक चीज। अगर फोटोसिंथेसिस जीएसए में आ जाता है तो आप सिंपली लिखते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक कार्बोहाइड्रेट्स विथ सनलाइट, ऑक्सीजन इन द क्लोरोप्लास्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज, क्या कहते हैं उसको, सिक्रीटेड यार, कार्बन डाइऑक्साइड इज, क्या उसके लिए टर्मिनोलॉजी है, रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट, सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन, ये सारे टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी के या बॉटनी के या एग्रीकल्चर वगैरह के। तो आपने एक डिफाइन किया, साइंटिफिक बात हो गई। अब फोटोसिंथेसिस पे जो है वो आ गया ऐसे, तो आपने टर्म भी डालने हैं। यही जो मैंने बातें की, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल और प्लांट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी चीजें, ये भी आपने लिखने हैं। साथ आपने कोई ईडियम, कोई इफेक्टिव लैंग्वेज भी डालनी है। एंड यू कैन से दैट ऑन दिस प्लेनेट there is a food chain, and for the survival of the humans, plants are busy to manufacture food through the process of photosynthesis, and we are grateful to sun that because of the sunlight we have the tremendous opportunity of getting carbohydrates which are consumed by the human beings, and they have sustainable life situations. तो यहां आपने इफेक्टिव लैंग्वेज भी यूज किया। उस फोटोसिंथेसिस को आपने ग्लोरीफाई किया, आपने उसको मैग्नीफाई किया, उसको खूबसूरत बना के पेश किया लिटरेरी स्टाइल में। Sir, I try to write essay, but every time I get 0 marks due to thesis statement. Where you write? I don't know. Where you write? If you write in some other place, I am not responsible for that. If you write an essay on my daily writing assignment, then I can give my expert opinion. Explore this group for thesis statements. I have given hundreds of examples of thesis statements, hundreds of such discussions that today we are doing. What qualities a good thesis statement should have? Strong language, technical language,
terminologies, because in this thesis statement you are declaring your position. Either essay should be in broken paragraphs with space. Space. These are small, petty things. Space should be there. That is called indentation. Indented. Indentation. थोड़ा सा स्पेस उसमें जो शुरू में होता है डाला करे. मॉडर्न इंग्लिश में इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अभी भी पुराना कन्वेंशनल स्टाइल चलता है. सो यू कैन गिव द स्पेस. ये छोटी मोटी बातें हैं. अब ज़्यादा डेटा, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस, उन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दे दे. इस्लाम एंड डेमोक्रेसी में भी इन पाकिस्तान इस्लामिक स्टडीज़. अभी आप देखते हैं लोग प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं. तो इस्लाम को तो पहले हर जगह घुसाते थे, अभी वो नहीं घुसाते इतने. नाउ पीपल आर बिकमिंग मोर प्रोफेशनल, सो दे डू नॉट. ज़ियाउल हक टाइम इज़ गॉन. ज़ियाउल हक के वक्त में बायोलॉजी भी इस्लाम से शुरू होती थी, फिजिक्स भी इस्लाम से शुरू होती थी, केमिस्ट्री भी इस्लाम से शुरू होती थी. अब लोगों को समझ आने लगी है कि यार हर चीज़ का अपना एक स्कोप होता है. अब हर चीज़ को हर जगह नहीं घुसा सकते. सो इन इस्लामिक स्टडीज देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इस्लाम एंड डेमोक्रेसी. इफ द क्वेश्चन इज अबाउट कंपैरिजन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते. नो. करामत अली ये नहीं आती कि जी कंपेयर मुस्लिम लीग, नून एंड पीटीआई गवर्नमेंट. नो. Can thesis statement be started with the discourse markers? Actually, you have one statement and you cannot put so many things there. Can you give me an example, Sabir Shah? Give me an example, then I will be telling you how you start a thesis statement with discourse markers. So I am reading your questions. Is argumentative essay thesis statement is very easy? हाँ ये तो क्वेश्चन नहीं है. Coherence is physical connection. Can I partially support any stance in essay, for example, giving pros and cons both for topic democracy? No, you cannot. If it is an argumentative essay, you cannot. If it is a descriptive essay, analytical essay, expository essay, then yes. But if it is whether democracy is a better form of government or dictatorship, so you have to take one option. Is democracy the best form of government? You have to take one option, yes or no. And as I told, cons you can use but against your topic. How would we, अंसार अहमद, अब वी से तुम निकलेगे तो तुम्हारे कॉन्शियसनेस आएगा तुम में. वी से नहीं निकलोगे तो कॉन्शियस किधर आएगा? जब तक एक बंदा आई यूज नहीं करता वो कॉन्शियस नहीं हो सकता. रिमेंबर, आई. जब आपने पूरी गांव का ठेका लिया है, पूरी कौम का ठेका लिया है, उम्मत का ठेका लिया है, पूरी दुनिया का ठेका लिया है, तो अपने नातावान कंधों पे हम कौन कौन सा बोझ ले जाएंगे? पहला अपना बोझ तो ले जाओ, अपने इस 2 किलो कुपड़ी का बोझ ले जाओ, फिर आप जो है जिंदगी में कुछ कर सकोगे. तो वी को छोड़ो. ये एक मेंटेलिटी है जिसको कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी, HERD, हर्ड मेंटेलिटी. हर्ड मेंटेलिटी क्यों पाकिस्तान क्यों बैकवर्ड है? उसमें से एक रीजन जो है वो वी का इस्तेमाल है. WE, वी. हम पश्तून, हम पंजाबी, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान. ट्राइबल मेंटेलिटी है. ट्राइबल, पूरी ट्राइब को साथ ले जाना है. पश्तो में कहते हैं कि दकामा सर डूब खाई बेकामा खतले नहीं, कि भाई अपने पूरी कौम को, अपने पूरी कौम को साथ ले जाना है तुमने. तो वो लीडर के लिए ठीक है. लीडर के लिए आम बंदा जो है वो आई इस्तेमाल करे. How would I get know? How would I
would get to know that a topic is argumentative or of other type. Argumentative means that the topic is controversial, disputed, मुतनाज़, जिसमें 5-6 किस्म के 2-3 किस्म के राय हो सकती है। अब ये टॉपिक एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो ये तो मुतनाज़ नहीं है ना, पाकिस्तान के लिए एजुकेशन तो चाहिए है। कुछ लोग जो कहते हैं यार एजुकेशन को ख़त्म करो, लेकिन 99% लोग चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान में एजुकेशन हो। एजुकेशन जो हो कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होगा। अब मैंने कहा आफ्टर 10-15 मिनट्स दिस स्टेटमेंट शुड बी रेड। हसनैन रजा ने लिखा आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में क्या है, आपके तो 3 घंटे सारे, 2-2.5 घंटे तो वैसे गुजर जाते हैं। ये तो मैं बहुत पीछे हूँ। कंक्लूजन स्टार्ट विद ओके क्वेश्चंस ओनली। आई एम गोइंग टू द एंड ऑफ द लेक्चर। ट्राइबल मेंटेलिटी, हर्ड मेंटेलिटी, ग्रेगेरियसनेस, यस भाई पूरे कौम का जो है आपने ठेका लिया है। कैन आई यूज द पर्सन? नो 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 मोहम्मद रिजा, नो नो पर्सनल प्रोनाउन, नो आई, नो वी, बिकॉज essay is academic and academic is indirect, third person। ऐसे में हमेशा थर्ड पर्सन होगा, पर्सनल और यू नहीं होगा। नो यू, नो आई, नो वी, ओनली इनडायरेक्ट। कैन आई पुट वर्ड्स इन कंक्लूजन सच एज कंक्लूडिंग द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स? यस, लेकिन जब आप CSS के लेवल पे आते हैं तो फिर ये बच्चों वाली चीजें आप कम यूज करते हैं। कंक्लूडिंग द अबव मेंशन्ड एज द राइटर हैज सेड, फिर ये आपको अजीब लगता है। मतलब एकेडमिक आप देखें ना, आप सेफ वन के आर्टिकल्स देखें, जो ओरिजिनल बुक्स है वो देखें, उसमें इस तरह की चीजें नहीं होती, आम नोट्स मोट्स में होते हैं। यस सनी प्रिंस, द मेन फंक्शन ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट इज टू मेक स्टांस एविडेंट, कि आपका जो स्टांस है, जो पोजीशन है, वो जाहिर हो जाए कि भाई आप जनाब या मैडम जो है क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में, आपका क्या बयानिया है। Can this statement be started with a discourse? Give me more examples. Enzymatic conversion of light energy into chemical energy. Yes, this is chemical language, scientific language. So all the best guys. See you now in Pashto classroom. If Pashto is your subject at 10 p.m. and then 10:30 we will be in PMS classroom. Daily write 1 paragraph for my checking. Make it your habit daily. Make it your habit. The writer is of the view. अब you are not going to analyze book review को, book review तो है नहीं कि आप किसी बुक को रिव्यू कर रहे हैं, तो आप कहाँ इसको लिखोगे द राइटर ऑफ द व्यू? मुझे तो इसका कोई जगह नजर नहीं आती। ऐसे में द राइटर इज ऑफ द व्यू, प्रेसी में कभी कभी आप लिख सकते हैं इसको। नो नो, ओपिनियन शुड आल्सो बी इनडायरेक्ट। आप इस ग्रुप को प्लीज एक्सप्लोर करें। इन तमाम क्वेश्चंस का जवाब मैं 50 दफा दे चुका हूं। अगर आपका प्राइमरी एजुकेशन में कोई गलत एक्सपीरियंस हुआ है, टीचर ने आपको डंडे से मारा है, आपको फिजिकल पनिशमेंट दिया है, कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है, तो आप इसे में ये नहीं लिख सकते कि जी व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल माय टीचर पनिश्ड मी फिजिकली एंड आई वाज फीलिंग सो डिसअपॉइंटेड एंड आई लॉस्ट माय सेल्फ एस्टीम एंड आई वाज सफरिंग फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इस तरह की लैंग्वेज आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आई आप यूज नहीं कर सकते। आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट लैंग्वेज में। यूजुअली इन पाकिस्तान इन प्राइमरी एजुकेशन देयर इज फिजिकल और corporal punishment which destroys
the self-esteem of the students, which must be avoided, and it must be declared criminality. कि फिजिकल पनिशमेंट जो है वो हम इसको क्राइम डिक्लेयर करें. तो बेशक आपका अपना तजुर्बा था बचपन में, लेकिन उसको आपने इनडायरेक्ट तरीके से एग्जामिनर को पहुंचा दिया. दिस इज कॉल्ड एकेडमिक थिंग्स. अब मैं जो कोटेशन देता हूं या मेरे पोस्ट आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ ग्रुप में या नई मिक्स पेज पे, वो ज़्यादातर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होती है, लेकिन उसमें मैं ये नहीं कहता कि जी फलान बंदे ने मेरे साथ ये किया और फलान बंदे ने मुझसे ये पूछा. मैं उस बंदे के आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता, बिकॉज आई मस्ट बी एकेडमिशियन, आई मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल पर्सन. एक बंदा मुझे अपना सीक्रेट देता है तो मैं उस सीक्रेट को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता. हाँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एकेडमिक रंग देके I can share it. So all the best. See you in Pashto and PMS classrooms.